Hello everyone, how are you all? Welcome to the English learning. Today I will explain you the remaining part of degrees of comparison. In last lecture I explained you the different forms of positive degree, comparative degree and superlative degree. What is the positive degree form? Positive degree form is as, adjective, as. Okay, comparative form is er, then. Before er you will add adjective, or if more than two syllables are there, then more than. Okay, then you will use more than. And what is the superlative form? The est, the est, the est to the end of the adjective. Okay, then you will write the adjective and write est, and if more than two syllables are there, then you will write the most and main adjective. Okay, so these are the forms of these 3 degrees. Now some adjectives in all the 3 degrees. Some adjectives in all the 3 degrees. Here these 3 degrees are given: positive, comparative and superlative. You have to learn these forms. Okay, learn these forms: bad, evil, ill. What is the comparative form of bad, evil, ill? Worse. And superlative form is worst. Far, farther, farthest. Good, well. Both the forms are of positive degree and they have the common comparative form better, best. Late, later, later, and superlative is latest, last. Little, less or lesser, and least. Much or many, comparative is more, most. Old, older or elder, and superlative is oldest, eldest. Near, nearer, and superlative is nearest, next. Then I also explained you interchange of degrees. The main rules of interchanging of degrees are: first of all, find out the form of the degree, which degree it is. Find out the degree, which degree it is, whether it is positive degree or comparative degree or superlative degree. You can identify the given sentence from the form of the degree. For example, here er is given, then is given, so surely it is comparative degree. Okay, and what comparative degree too, you have to change into positive degree. Okay, so here don't change the meaning of the sentence. The first and important point in interchange of degrees is don't change the meaning of the sentence. There are more than one way to write the sentence. There are many ways to write the sentence without changing the meaning. Okay, for example, here directly in exam they will not give Sita is taller than her sister, change the degree into positive. Okay, instead of that it may be given as use tall, use tall, ऐसा भी दिया होगा. ओके, तो उसका मीनिंग क्या है कि आपको टॉलर की जगह पे टॉल यूज़ करना है. इट मीन्स टॉल हम लोग कौन सी डिग्री में यूज़ करेंगे? पॉजिटिव डिग्री में. ओके, सो पॉजिटिव डिग्री में आपको चेंज करना है. दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस. ओके, ये डू इज़ डायरेक्टेड में आ सकता है एग्ज़ाम में, और डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में भी ये लोग अलग अलग ढंग से पूछ सकते हैं. देर आर मैनी वेज टू आस्क दिस क्वेश्चन. ओके, सो सीता इज़ टॉलर देन हर सिस्टर, चेंज द डिग्री, ऐसे भी लिखा हो सकता है, या यूज़ टॉल, टॉल यूज़ करो, ऐसा भी लिखा होगा. सो यू शुड हैव द क्लियर कॉन्सेप्ट when you will use tall and how. Okay, so here her sister is not so tall as Sita. Without changing the meaning, we have changed the degree.
हर सिस्टर इज़ नॉट सो टॉल एज सीता, उसकी सिस्टर है, सीता की सिस्टर है, वो सीता जितनी टॉल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सीता ज़्यादा टॉल है। ओके, सेम थिंग वी हैव सीन इन अदर सेंटेंसेस ऑल्सो। देन फ्रॉम सुपरलेटिव टू पॉजिटिव, दिस इज़ द बेस्ट बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर। ये सबसे अच्छी बुक है इंग्लिश ग्रामर की। Okay, so no other book on English grammar is as good as this book. Okay, so from superlative to positive, you have to start with no other. यहाँ पर भी ऐसे लिखा होगा, डायरेक्टली नहीं लिखा होगा कि पॉजिटिव में चेंज करो। यहाँ पर ऐसे लिखा होगा कि यूज़ नो अदर, यूज़ नो अदर ऐसे भी लिखा होगा, या ऐसे भी लिखा होगा कि यूज़ एज। ओके, या फिर ऐसे भी लिखा होगा कि चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री। जब डायरेक्ट दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देयर आर मैनी वेज टू आस्क दिस क्वेश्चन, ट्विस्टिंग बहुत होता है। ओके, सो बी केयरफुल। रोज़ इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, सो नो फ्लावर इज़ एज ब्यूटीफुल एज रोज़। तो ये आप लोगों को पता चला सुपरलेटिव में से पॉजिटिव में कैसे करना है। नाउ पॉजिटिव टू कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। यहाँ पर भी जैसे नो बुक वाला पॉजिटिव है, ओके, तो यहाँ पर भी ऐसे लिखा होगा कि यूज़ मोस्ट। अगर ऐसे लिखा होगा कि यूज़ मोस्ट तो आपको पता चल जाएगा कि ये सुपरलेटिव डिग्री है। ओके, और अगर ऐसा लिखा भी, ऐसा भी हो सकता है कि यूज़ मोर। सो यू शुड अंडरस्टैंड मोर इज़ कंपैरेटिव डिग्री, मोस्ट इज़ सुपरलेटिव डिग्री। ओके, देन ये वाली जो सेंटेंस है, कोलकाता इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज़ ऑफ इंडिया, ये प्लूरल है। सिटीज़ है वो प्लूरल है। ओके, सो हम लोगों को उसकी पॉजिटिव डिग्री स्टार्ट करनी है फ्यू सिटीज़ से। ये ऐसे भी हो सकता है कि बिगिन द सेंटेंस विथ फ्यू। ओके, सो फ्यू सिटीज़ ऑफ इंडिया आर एज बिग एज कोलकाता, और कोलकाता इज़ बिगर देन मैनी अदर सिटीज़ ऑफ इंडिया। Okay, so in this way you will write the sentence. This exercise we will do in the end of this chapter. In last time we have done exercise 3, exercise 4, exercise 6. Okay, now let's start with exercise 7. Fill in the blanks with comparative or superlative form of the words given in brackets. जो ब्रैकेट में वर्ड दिए हैं उसका सुपरलेटिव या कंपैरेटिव यूज़ करके आपको बनानी है सेंटेंस। ओके, सो हाउ यू विल आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि कंपैरेटिव लिखना है या सुपरलेटिव लिखना है। ओके, सो लिसन इट केयरफुली। फर्स्ट सेंटेंस इज द मिसिसिपी इज लार्ज बट द अमेज़न इज लार्जर। मिसिसिपी इज लार्ज बट the Amazon is larger. Mississippi is a large river but the Amazon is larger. दो रिवर की बात हो रही है, so your comparative. ओके, मिसिसिपी लार्ज है लेकिन अमेज़न है वो लार्जर है, यानी मिसिसिपी से ज़्यादा लार्ज है। सेकेंड वन, द सर्कस कंपनी हैड मैनी स्ट्रॉन्ग मैन इन देयर एम्प्लॉयज़ बट सुलेमान वॉज डैश। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, उसमें से सुलेमान है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो यह सुपरलेटिव होगा द स्ट्रॉन्गेस्ट। ओके, व्हाट विल बी द सुपरलेटिव फॉर्म? द स्ट्रॉन्गेस्ट। ओके, देन थर्ड वन, हाउ इज़ योर ब्रदर टुडे? इज़ ही डैश नाउ? दो चीज़ की बात है, कल कैसा था, अभी कैसा है। ओके, सो कंपैरेटिव डिग्री। 4 नंबर, ऑफ द 2 इविल्स बिफोर हिम ही चोज डैश। ही चोज डैश, लिटिल का हो जाएगा द लिस्ट। ओके, दो चीज़ें उसके सामने थी, इविल्स यानी कि जो ख़राब चीज़ें हैं उसमें से उसने जो कम ख़राब थी वो चूज़ की। ओके, द लिस्ट। 5 नंबर, ही थिंक्स ही इज़ डैश देन। सी, देन आया ना, ऑब्वियसली इट इज़ कंपैरेटिव डिग्री, तो हम लोग को ई आर लगाना है। ई इज़ ऑलरेडी गिवन, सो एड आर।
He thinks he is wiser than his parents, which is the most foolish on his part. उसे ऐसा लगा कि वो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा वाइज है, लेकिन ये उसकी लाइफ का सबसे फुलिश पार्ट था. विच इज़ द मोस्ट फुलिश. ओके, द मोस्ट फुलिश ऑन हिज पार्ट. So that's all for exercise 7. Now exercise 8. Fill in the blank with superlative adjectives. Okay, words दिए हुए ब्रैकेट में you have to choose the correct word and write the superlative form of the adjective. Sun is the dash force on earth. सन है वो अर्थ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग. यहाँ पे द दिया है ना, द दिया है, सो सुपरलेटिव हो जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट. यहाँ पे और कोई वर्ड यूज़ नहीं होगा. स्ट्रॉन्ग का हम लोग लिखेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट. ओके, बट वी आर स्टिल नॉट यूजिंग द सन टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल. अभी भी हम लोग सन का ग्रेटेस्ट एक्सटेंट है, पॉसिबल हो सकता है, फिर भी हम लोग यूज़ नहीं कर रहे. Fossil fuels are presently the dash source of electricity. फॉसिल फ्यूल्स यानी जो हम लोग ज़मीन के अंदर से निकालते हैं वो कोल, ये है वो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे ज़्यादा बड़ा सोर्स है. However, these fuels are also one of the dash causes of air pollution. Commonest, okay, commonest causes of air pollution. To use the force of the sun to the maximum, we need our most creative thinking and our most serious effort. Serious, 3 syllables, so most आएगा. Okay, so that's all for exercise 8. Now exercise 9. Who made the dash spaceship? Superlative degree से fill in the blanks आपको करनी है. So what is the superlative form of early? Earliest. Okay, IEST, earliest. Second, which country has the dash number of spaceships? Which country has the dash number of spaceships? So largest. Okay, then large का हो जाएगा largest. Which spaceship made the dash journey in space? तो लॉन्ग का क्या हो जाएगा? लॉन्गेस्ट. Which spaceship made the longest journey in space? तो लॉन्ग का हो जाएगा longest. Okay. Is a space module the dash way to travel in space? तो easy का हो जाएगा easiest. The is given. So the only thing to do is add est and write the answer. Easiest way to travel in space. 5 number. Isn't space travel the dash cost का हो जाएगा costliest. LIEST. ओके, cost का हो जाएगा costliest. एंड नॉट द कोस्ट है वो नाउन है, हमें यहाँ पर उसका एडजेक्टिव बनाना है. कोस्ट का एडजेक्टिव हो जाएगा कॉस्टली, है ना. कॉस्टली है, बहुत कॉस्टली ऐसे बोलते हैं ना हम लोग. तो जब हम लोग उसका सुपरलेटिव करेंगे तो आई, वाई का आई करके EST लगाएंगे. ओके, सो कॉस्टलीएस्ट एंड नॉट द डैश वे टू ट्रैवल, ईजी का हो जाएगा ईजीएस्ट. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर एक्सरसाइज 9. नाउ कम टू एक्सरसाइज 10, इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज. जो मैंने बताया था ना आप लोगों को कि इस तरह से पूछी जाएगी. ओके, तो वो डिग्रीज़ हैं यहाँ पर. इंटरचेंज करना है पॉजिटिव टू सुपरलेटिव, सुपरलेटिव टू पॉजिटिव, या सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव, कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव. ओके, तो इंटरचेंज इसी को कहते हैं, एक डिग्री में से दूसरी डिग्री में उसे ले जाना. फर्स्ट सेंटेंस इज अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स. ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग. अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स. जितने भी ग्रेटेस्ट किंग्स थे उसमें अशोका भी थे. ओके, ऐसा नहीं है कि अशोका सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट किंग थे, ऐसा नहीं है. वन ऑफ द है, तो जब प्लूरल होता है चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री. ओके, जब प्लूरल होता है किंग्स दिया है, ओके, किंग्स दिया है,
जब प्लूरल होता है देन एट दैट टाइम वी विल स्टार्ट विथ फ्यू इन पॉजिटिव डिग्री. ओके, फ्यू से स्टार्ट करेंगे हम लोग जब प्लूरल होता है. किंग्स दिया हुआ है ना, यहाँ पर किंग्स दिया है. ओके, तो हम लोग प्लूरल क्या होगा उसका, फ्यू. ओके, फ्यू किंग्स वर एज ग्रेट एज अशोका. कुछ किंग्स थे जो अशोका जितने ग्रेट थे. ओके, देन सेकेंड वन, आई हैव नॉट ईटन अ मोर डिलीशियस केक. यानी कि मैंने आज तक इतना डिलीशियस केक नहीं खाया, यानी कि अभी जो खाया है वो सबसे ज़्यादा डिलीशियस केक था. ओके, सो सुपरलेटिव डिग्री इज आई हैव ईटन द मोस्ट डिलीशियस केक. डिलीशियस इसमें भी 4 syllables हैं, दैट्स वाई वी यूज्ड मोस्ट. आई हैव ईटन द मोस्ट डिलीशियस केक. ओके, थर्ड वन, दिस इज़ द ओल्डेस्ट चर्च इन स्पेन. देखो यहाँ पर सब जगह पर सिंगुलर है चर्च. यहाँ पे किंग्स प्लूरल था तो हम लोगों ने फ्यू यूज़ किया. ओके, अब यहाँ पे सिंगुलर है. थर्ड आंसर, दिस इज़ द ओल्डेस्ट चर्च इन स्पेन. ये स्पेन का सबसे ज़्यादा पुराना चर्च है. ओके, सो नो चर्च इज़ ओल्डर देन दिस इन स्पेन. यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, नो चर्च आएगा, ER नहीं आएगा यहाँ पर. नो चर्च इज़ ओल्डर देन दिस इन स्पेन. ओके, अंडरस्टूड. फोर्थ वन, नो पॉप सिंगर इज़ फेमस देन माइकल जैक्सन. जैक्सन है, माइकल जैक्सन है, वो सारे सिंगर्स में सबसे ज़्यादा पॉपुलर था. इसका मतलब ये हुआ ना, कोई भी पॉप सिंगर है माइकल जैक्सन जितना फेमस नहीं है. मतलब माइकल जैक्सन है वो सबसे ज़्यादा फेमस है. सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी, माइकल जैक्सन इज़ द मोस्ट फेमस पॉप सिंगर. माइकल जैक्सन इज़ द मोस्ट फेमस पॉप सिंगर. ओके, अगर ठीक से नहीं दिख रहा है तो लिख लो अभी, माइकल जैक्सन इज़ द मोस्ट फेमस पॉप सिंगर. अंडरस्टूड. नाउ फिफ्थ वन, नो वन इज़ एज लेज़ी एज मोहन इन द क्लास. कंपैरेटिव बनाना है कि कोई भी मोहन जितना लेज़ी नहीं है क्लास में. यानी मोहन है वो कोई भी बच्चे से ज़्यादा लेज़ी है. ओके, तो व्हाट विल बी द आंसर फॉर कंपैरेटिव डिग्री, मोहन इज़ लेजियर देन. किसके बारे में बात करें, मोहन के बारे में. मोहन इज़ लेजियर देन एनी अदर एनी स्टूडेंट इन क्लास, इन द क्लास. मोहन इज़ लेजियर देन एनी स्टूडेंट इन द क्लास. ओके, देन 6th नंबर, हरी एंड यू आर टॉलर देन मी. हरी और तुम दोनों मुझसे ज़्यादा टॉल हो. ओके, पॉजिटिव डिग्री है ये. इसका मतलब क्या हुआ कि मैं तुम्हारे जितना टॉल नहीं हूँ. तो आई एम नॉट सो टॉल एज हरी एंड यू. आई एम नॉट सो टॉल एज हरी एंड यू. हो गया ना, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग हम लोगों ने डिग्री को चेंज कर दिया. सो इन दिस वे यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ एक्सरसाइज, last exercise 10 in notebook. Okay, you will write this answer in notebook. This exercise you will write in notebook. Okay, बाकी सब टेक्स्ट बुक में लिखोगे, but exercise 10 you will write in notebook. Okay, now let's see the extra exercises for interchange of degrees. This exercise also you will write the title extra या practice, extra practice. Okay, this will be the title, extra practice. टाइटल ये लिखना है, फिर उसके बाद आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है. दिस एक्सरसाइज ऑल्सो यू विल राइट इन नोटबुक. ओके, सेंटेंस लिखना है, फिर उसका आंसर लिखना है. ओके, इन दिस वे यू विल राइट एक्स्ट्रा exercise notebook. Okay, so let's start with this exercise.
our first sentence is, my birthplace is better than any other capital city in the world. Here, which degree it is better than? Which degree it is? Comparative degree. Okay, comparative form है और then दिया हुआ है. तो comparative का अगर कुछ clarify नहीं किया है ना, तो comparative to positive और positive to comparative लेना. Okay, तो my birthplace is better than any other capital city in the world. यहाँ पर हम लोग लिखेंगे no other capital city in the world is as good as my birthplace. Okay, यहाँ पर दिया है मेरा बर्थ प्लेस है वो वर्ल्ड की कोई भी कैपिटल सिटी से ज़्यादा अच्छा है, यानी कि कोई भी सिटी है वर्ल्ड की वो मेरे बर्थ प्लेस से अच्छी नहीं है. ओके, नो अदर कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड इज़ एज गुड एज माई बर्थ प्लेस. ओके, सेकेंड वन, माई मदर टंग इज़ द ग्रेटेस्ट लैंग्वेज. यहाँ पर मदर टंग यानी हमारी मातृभाषा, उसकी बात की गई है कि मेरी मातृभाषा है वो सबसे अच्छी लैंग्वेज है. ओके, सुपरलेटिव है तो सुपरलेटिव में से आप कंपैरेटिव में भी कर सकते हो, पॉजिटिव में भी कर सकते हो. ओके, देखते हैं. चलो, द ग्रेट नो अदर लैंग्वेज इज़ एज ग्रेट एज माई मदर टंग. ओके, और माई मदर टंग इज़ ग्रेटर दैन एनी अदर लैंग्वेज. दोनों में मैंने आपको करके दे दिया है, आप कोई भी लिख सकते हो. ओके, आई रिपीट द आंसर, नो अदर लैंग्वेज इज़ एज ग्रेट एज माई मदर टंग. दिस इज़ पॉजिटिव डिग्री, एज आया. अगर कंपैरेटिव में करना है तो माई मदर टंग इज़ ग्रेटर दैन एनी अदर लैंग्वेज. अंडरस्टूड? मोस्ट अदर लैंग्वेज या एनी अदर लैंग्वेज. समझ में आया? थर्ड नंबर, चॉक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन चीज़ इन आवर लाइफ. चॉक है वो चीज़ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. मतलब क्या हुआ इस सेंटेंस का? चॉक है वो चीज़ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी दोनों खाने की चीज़ है? नहीं. चॉक मतलब इट सिग्निफाइज योर ऑक्यूपेशन. कुछ काम करो वो खाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके, काम करोगे तो खाना मिलेगा. ओके, सो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? चॉक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन चीज़ इन आवर लाइफ. तो चीज़ इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट as chalk in our life. What is the answer? Cheese is not so important as chalk in our life. यानी चीज़ है वो चॉक जितनी इम्पॉर्टेंट नहीं है. फोर्थ नंबर, द फाइट फॉर जस्टिस इज़ द नोबलेस्ट क्वालिटी. यहाँ पे क्वालिटी की बात हो रही है. न्याय के लिए लड़ाई करना, लड़ना वो सबसे अच्छा काम है, सबसे अच्छा गुण है वो. ओके, सो यर सुपरलेटिव डिग्री है तो हम लोग दोनों डिग्रीज में कर सकते हैं कन्वर्ट, बट आप लोग कोई एक में ही लिखोगे जो भी आपको ईजी लगे. आई एम गिविंग द आंसर्स इन बोथ द डिग्रीज, बट यू विल राइट द ओनली आंसर विच यू फाइंड इट ईजी. ओके, फोर्थ वन, the fight for justice is the noblest quality. So positive degree is no quality is as noble as the fight for justice. Okay, ये पॉजिटिव डिग्री हुआ फोर्थ का. ओके, फोर्थ का पॉजिटिव डिग्री हुआ. नाउ सुपरलेटिव डिग्री दिया हुआ है, हम लोग पॉजिटिव में बनाया हमने. नाउ comparative degree, the fight for justice is nobler than any other quality. The fight for justice is nobler, R लगाना है सिर्फ, nobler than any other quality. Okay, understood? 5 number, terrorism is more dangerous than any other outside threat. थ्रेट यानी डर. टेररिज्म सबसे ज़्यादा डेंजरस है. ओके, यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री दी है तो आप लोग पॉजिटिव में बना सकते हो. एनी अदर दिया है उसका नो अदर कर दो. नो अदर आउटसाइड थ्रेट इज़ एज डेंजरस एज टेररिज्म. नो अदर आउटसाइड थ्रेट इज़ एज डेंजरस एज टेररिज्म. ओके, 5 सेंटेंस. 6 number, the moon is not as large as the Jupiter.
तो हम लोग पॉजिटिव दिया है तो कंपैरेटिव बनाएंगे. द जुपिटर इज़ लार्जर देन द मून. द जुपिटर इज़ लार्जर देन द मून. आई रिपीट द आंसर. द जुपिटर इज़ लार्जर देन द मून. ओके. 7 number. Green Park is as green as the glory of green heaven. पॉजिटिव डिग्री है. ओके. कंपैरेटिव में करते. द ग्लोरी ऑफ ग्रीन हेवन इज़ नॉट ग्रीनर देन ग्रीन पार्क. यानी कि ग्रीन हेवन की जो ग्लोरी है वो ग्रीन पार्क से ज़्यादा ग्रीन नहीं है, क्योंकि दोनों इक्वल ग्रीन है, तो कोई भी ज़्यादा नहीं है. ओके. आई रिपीट द आंसर. द ग्लोरी ऑफ ग्रीन हेवन इज़ नॉट ग्रीनर ग्रीनर देन ग्रीन पार्क. Okay. 8 number. Some story books are more interesting than Black Knight. Okay. Black Knight भी स्टोरी बुक का नाम. ओके. सो यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे. ब्लैक नाइट इज़ नॉट सो इंटरेस्टिंग एज सम स्टोरी बुक्स. ब्लैक नाइट इज़ नॉट सो इंटरेस्टिंग एज सम स्टोरी बुक्स. यानी कि कुछ स्टोरी बुक्स है वो ब्लैक नाइट से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. तो हम लोग क्या बनाएंगे? ब्लैक नाइट है वो कुछ स्टोरी बुक्स से ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, जितनी इंटरेस्टिंग नहीं है, कम है. ओके. 9 number. वाटर इज़ द ग्रेटेस्ट बून ऑफ द सेंचुरी. सुपरलेटिव डिग्री है. ओके. तो हम लोग दोनों इसका पॉजिटिव कंपैरेटिव दोनों पॉसिबल है. Okay, so water is greater than any other boon of the century. This is comparative degree बना इसका. Water is greater than any other boon of the century. ये comparative हुआ. आप positive देखते हैं. No other boon of the century is as great as water. No other boon of the century is as great as water. समझ में आया? पॉजिटिव डिग्री. 10 number. नीम इज़ वन ऑफ द मोस्ट सूटेबल मेडिसिन्स इन हॉट एरिड एरियाज़. यानी कि हॉट क्लाइमेट वाले एरियाज़ है उसमें नीम है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल मेडिसिन है. ओके. सुपरलेटिव डिग्री है. तो हम लोग पॉजिटिव बनाएंगे. नो अदर मेडिसिन्स इन हॉट एरिड एरियाज़ आर एज सूटेबल एज नीम. No other medicines in hot arid areas are as suitable as neem. Okay. और कंपैरेटिव बनेगा. नीम इज़ मोर suitable than any other medicines in hot arid areas. I think कंपैरेटिव है तुम्हारे लिए ज़्यादा ईजी रहेगा. ओके. नीम इज़ मोर suitable than any other medicines in hot arid areas. ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हैं तो ये ज़्यादा सूटेबल रहेगा. 11 number. He is more knowledgeable than you. उसमें तुमसे ज़्यादा नॉलेज है. ओके. तो इसका पॉजिटिव बनाएंगे. You are not as knowledgeable as him. ही का हिम हो जाएगा. As he, sorry. You are not as knowledgeable as he. Okay. Then 12 number. Europeans have the healthiest teeth. यूरोपियंस पीपल हैं, नेटिव्स है यूरोप के. ओके. तो यूरोपियंस के टीथ सबसे ज़्यादा हेल्दी हैं. ओके. तो यहाँ पर हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे कि नो अदर टीथ. हम लोग क्या लिखेंगे? No other people's teeth, no other people have as healthy teeth as Europeans. Okay. और Europeans teeth are more, sorry, Europeans teeth are healthier than any other people's have. Okay. वैसे इतने कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस 8th स्टैंडर्ड में नहीं आएंगे. ओके.
so don't worry about this sentence. 13 number, this joke book is more famous than most other storybooks. No other storybook is as famous as this joke book. Okay, no other storybook is as famous as this joke book. 14 number, your life is as difficult as a cat on a hot tin roof. तुम्हारी लाइफ है वो इतनी डिफ़िकल्ट है जैसे कि एक गरम रूफ पर, हॉट है वो रूफ और उस पर कैट बैठी है. इट इज़ डिफ़िकल्ट. ओके, सो हियर कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे. द लाइफ ऑफ अ कैट ऑन अ हॉट टीन रूफ इज़ मोर डिफ़िकल्ट देन योर्स. ओके, या देन योर लाइफ. द लाइफ of a cat on the hot tin roof is not more difficult than yours. Okay, then 15 number, his issue is more complicated than a devil's advocacy. So here a devil's advocacy is not so complicated issue as his. A devil's advocacy is not so complicated issue as his. Okay, so this exercises answers you have to write in notebook. I will upload the answers of this exercise. Okay, so don't worry about the answers. I will upload the only answers of these exercises. Okay, I hope you understood and will do properly in exams. We will meet in next lecture with next new chapter. Till then, bye.